friends, today we're back here on my channel Crux of English, and today we are going to start the next topic of paper 1 RPSC English literature, which is post-structuralism. This is the second theory that I'm going to teach you. If you haven't seen the first part, you need to go see structuralism first, because these two are actually interconnected with each other. And as you can see in the word post-structuralism came after structuralism. पहले structuralism आया था और उसके बाद उसके opposition में post-structuralism आया था, और जो इनके concepts हैं वो भी basically opposition में है structuralism के, इसलिए आपको structuralism पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है. So structuralism is also known as deconstruction. Why is it called deconstruction? Because here we are talking about deconstructing every structure. So हम पहले structuralist की कुछ बात कर लेते हैं, just a quick revision so that you can remember things. So structuralist, what they said was that everything exists in structure, and the meaning that is actually right is the one closest to the center. ये हम सबको पता है बिकॉज ये हमने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ लिया था. नाउ द मीनिंग विच इज एक्चुअली राइट हैज टू बी द क्लोजेस्ट वन टू द सेंटर. Another thing that structuralists talked about are binary oppositions and how everything exists in binary oppositions. If there isn't one, there wouldn't be another. For example, day or night, or white and black, and how if there wouldn't be a day, there wouldn't be a night. That's what structuralists were saying. Now, the post-structuralists, they said there isn't a structure, there's no structure. कोई structure exist नहीं करता है किसी भी चीज़ में. उन्होंने बोला there is no meaning, and therefore meaning center से close है हो कैसे सकता है, क्योंकि जब कोई structure नहीं है तो कोई center नहीं होनेगा. जब कोई center नहीं है तो आप meaning निकाल कैसे सकते हो कि center से closest वाला सही होगा. हमने पढ़ा था रोलैंड बार्थ्स को, and how Roland Barthes said that every reading is a misreading. That's the exact concept of post-structuralism, because post-structuralists say that every reading that you come across, you find different meanings, and therefore there is no right or wrong meaning. There is nothing that is right or wrong. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सही होगी जो गलत होगी मीनिंग, बिकॉज कोई सेंटर नहीं है तो आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ये कॉन्सेप्ट जो था वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने दिया था. अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने एक और नई बात बोली थी. उन्होंने बोला बाइनरी ऑपोजिशंस कुछ नहीं होते, वो एग्जिस्ट नहीं करते. बाइनरी ऑपोजिशंस अपने आप में एक कल्चरली कंस्ट्रक्टेड आइडिया है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता. उन्होंने बोला बाइनरी ऑपोजिशंस में कोई मीनिंग नहीं है, कोई रियल मीनिंग नहीं है. जो एक्चुअली बाइनरी ऑपोजिशंस हैं वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है. हमारा जो कल्चर है उसने कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं कि ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए, और हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं और हम उनको बाइनरी ऑपोजिशंस बोल रहे हैं. तो उन्होंने बोला एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्लैक्स का एंड वाइट्स का. आप सबको पता होगा दो रेस होती हैं, एक वाइट होता है एक ब्लैक होता है. देयर आर अदर रेसेस जो जैसे एशियंस एक्चुअली ब्राउन्स होते हैं. तो ब्लैक्स एंड वाइट्स लाइक अफ्रीकन्स, लेट्स से अफ्रीकन्स एंड अमेरिकन्स. सो हम सब हमेशा से ये सोचते आए हैं कि वाइट्स आर सुपीरियर, वाइट्स आर सुपीरियर टू ब्लैक्स. वाई? बिकॉज हमको कल्चरली ये समझाया गया है हमेशा से कि जो बाइनरी ऑपोजिशंस में सुपीरियर होगा उसके पास ज़्यादा पावर होगी. द वंस in the binary oppositions that holds more power is actually more powerful, and therefore they have more leverage in the whole construct of the culture. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि whites को historically हमने देखा है कि whites के पास ज़्यादा हमेशा से leverage रही है, वो superior माने जाते थे, इसीलिए उनके पास इन दोनों में comparatively ज़्यादा power है और इसीलिए हम उनको prefer करते हैं over the other one.
ये एक्चुअली पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का आइडिया था जो आपको जानना ज़रूरी है, एंड हाउ इट वाज ऑपोजिंग टू द स्ट्रक्चरलिस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम राइटर्स of the post-structuralist theorists. Okay, the first writer that we are going to talk about is Michel Foucault. It's pronounced Foucault, you should know that, and he is very, very important. He is a very important part of the post-structuralist theory. Michel Foucault. Michel Foucault says, so let's talk about his books, and then we're going to talk about the concepts that he gave in those books. The first book that you need to remember is Madness and Civilization. The subtitle of this book was The History of Insanity in the Age of Reason. The next book is Birth of a Clinic. The third book is Order of Things. The fourth book that we are going to talk about is Discipline and Punishment. Now I should drop this so that I can write more. There are two other books that you have to remember of his. The fifth one is History of Sexuality, and the last one is Archaeology of Knowledge. You have to remember these 6 books. Now let's start with talking about Madness and Civilization. So in Madness and Civilization, as आपको उसी टाइटल से भी समझ में आ रहा होगा, it's about madness and how mad people are treated in the civilized society. So in this book, what he talks about is how mad people were treated before Renaissance and how they're treated now versus now. So Renaissance में actually the mad people, they were seen as epitome of wisdom. उस टाइम ऐसे सोचा जाता था कि जो मैड पीपल है ना, उनके पास बहुत विजडम है, वो एक्चुअली विजडम की बातें कर रहे हैं. उस टाइम मैड पीपल को सोसाइटी का पार्ट नहीं देखते थे, वो देखते थे कि ये सोसाइटी से डिफरेंट है, पर उनको ये नहीं लगता था कि ये गलत है या फिर ये हमारी सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है या हमको ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. वो जस्ट एक डिफरेंट तरह से देखे जाते थे और वो सोचे जाते थे एज एपिटोम्स ऑफ विजडम. इसीलिए दे वर अलाउड टू रोम फ्री, दे हैड देयर ओन फ्रीडम. बट नाउ if you would see now, mad people are actually treated as they are sick, not as epitome of wisdom, but they are sick. They are sick and they don't have any freedom. They don't have any freedom. They are locked up. They are seen as threats to the society. This is what actually Madness and Civilization was about, and how mad people are treated in Renaissance and now. ये concept उन्होंने दिया था माइकल फूको ने in Madness and Civilization. Now let's talk about the next concept, which is Birth of a Clinic. Now Birth of a Clinic, आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा, इट्स समथिंग टू डू विद डॉक्टर्स और मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट. So this is actually about the evolution
ऑफ मेडिसिन। यहाँ इन्होंने 1800 से बात करनी शुरू करी है। उन्होंने बोला 1800s में एक्चुअली जो पेशेंट्स थे उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, बिकॉज उस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं थी, जो ट्रीटमेंट था वो अच्छा नहीं था। बट टुडे the treatment is very well, because there have been so much evolution in the medical facilities, in medicine, in the doctors and the studies that they do. So आज का जो treatment है वो better है। लेकिन उन्होंने एक नई बात बोली, जो एक नया concept उन्होंने दिया, वो था medical gaze का। Now what is medical gaze? वो बोलते हैं medical gaze is how you look at your patients or how you look at someone who is sick. So he says पहले एक्चुअली मेडिकल गेज एग्जिस्ट नहीं करता था 1800s में, लेकिन अब मेडिकल गेज एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को एज ऑर्गन्स देखते हैं रादर देन ह्यूमंस। जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशेंट्स को ऑर्गन्स की तरह देख रहे हैं, ह्यूमंस की तरह नहीं। दूसरी बात उन्होंने बोली कि अब जो डॉक्टर्स हैं दे आर मोर कंसर्न्ड ऑफ द पेशेंट, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग और समवन दे हैव टू ट्रीट और मेक बेटर, दे आर एक्चुअली सीन एज कस्टमर्स। mere customers who are there for a service and they need to be treated। तो वो वहाँ पे आएंगे, उनको कस्टमर की तरह आप ट्रीट करेंगे, उनके ऑर्गन्स को देखेंगे और आप उनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल गेज जो दिया था माइकल फूको ने। The next topic that we are going to talk about is discipline and punishment, the book Discipline and Punishment. What Foucault said in that book, he actually gave you the history of punishment, how the history of punishment has evolved. How people were punished before और अब आप उनको कैसे पनिश कर रहे हैं। पहले पनिशमेंट्स जो थी बेसिकली वो ज़्यादातर डिपेंड करती थी आपको हैंगिंग हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हैंगिंग, नॉट जस्ट हैंगिंग, आपको क्राउड के बीच में हैंग किया जाता था, या आपका क्राउड के बीच में दे वुड एग्जीक्यूट पीपल, तो पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते थे पहले। सो व्हाट एक्चुअली क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस इज, अब आप एक यहाँ पे एक आदमी है, चाहे उसने कुछ भी करा हो, आप उसको यहाँ पे मरते हुए देख रहे हैं, आप उसको हैंग होते हुए देख रहे हैं। यहाँ एक और आदमी खड़ा है जो एक्चुअली उसको हैंग कर रहा है, तो आपके लाइट में, आपके परसेप्शन में दिस वुड बी द विक्टिम एंड दिस वुड बी द बैड पर्सन। तो एक्चुअली जो क्रिमिनल है वो एट द एंड ऑफ द डे परसेप्शन में पीपल के वो विक्टिम बन जाता था रादर देन बीइंग अ क्रिमिनल। And the person who was actually executing an order, who was actually executing punishment, who is not in the wrong, ये कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, ये एक क्रिमिनल हो जाता था because he is killing someone। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहले होता था। अब क्या हुआ, उसके बाद आया प्रिजन्स, बर्थ ऑफ प्रिजन्स, प्रिजन्स बनने शुरू हो गए। प्रिजन्स क्या होते हैं? प्रिजन्स आर एनी प्लेसेस जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है ताकि उनके बिहेवियर में चेंज ला सके, उनको सोशली ज़्यादा एफिशिएंट बना सके, तो इसीलिए अब प्रिजन्स इन्वेंट हुए। तो प्रिजन्स के थ्रू ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये ख़त्म हो गया। नाउ यू डोंट स्टार्ट सीइंग द क्रिमिनल एज द विक्टिम, इसीलिए प्रिजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कंपैरिजन में जो आज का नया कॉन्सेप्ट है प्रिजन्स का, दैट इज बेटर देन पब्लिक एग्जीक्यूशंस। उसके अलावा उन्होंने बोला एक कॉन्सेप्ट होता है पेनॉप्टिसिज्म। पेनॉप्टिसिज्म क्या होता है? एक प्रिजन है, उन्होंने प्रिजन के कॉन्टेक्स्ट में दिया, यहाँ पे प्रिजन है और यहाँ पे डिफरेंट सेल्स है जहाँ पे क्रिमिनल्स रह रहे हैं, तो इसके बीच में ना एक टावर बनाया जाएगा, यहाँ पे टावर होगा। टावर जो होगा इसमें आप सारी
इनकी एक्टिविटीज़ को, इनके सेल्स को देख सकते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने सीखा है, वी हैव लर्नड दैट व्हेन वी आर बीइंग वॉच्ड वी बिहेव डिफरेंटली। ह्यूमंस व्हेन उनको पता होगा कि उनको कोई देख रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे से बिहेव करेंगे, इससे उनके बिहेवियर में कांस्टेंट चेंज आएगा। इसीलिए क्रिमिनल्स को सोशली एफिशिएंट बनाने के लिए, सोशली मोर बिहेव्ड बनाने के लिए एक पैनोप्टिसिज्म का क्रिएशन किया गया, ताकि व्हेन यू लुकिंग एट देम दे बिहेव मोर एप्रोप्रिएटली। सो दिस वाज अबाउट डिसिप्लिन एंड punishment. The next one that we are going to talk about is history of sexuality. So let's talk about history of sexuality. What history of sexuality, as the title is telling us, it's about history of sexuality and how sexuality has evolved with time and how open people are about it. So what he says is that sexuality is something that has been repressed for ages. हम लोग सेक्सुअलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो एक टैबू समझा जाता है, और हम एज अ सोसाइटी हम सेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं करना चाहते। इसीलिए जो रिप्रेस्ड हैं, स्पेशली इंडिविजुअल्स, women, the fairer sex, we are repressed and we are not allowed to talk about sexuality because ये एक टैबू माना गया है हमारी सोसाइटी में। तो माइकल फूको बोलते हैं कि एक लौता तरीका जो है इस चीज़ को चेंज करने का, जो हिस्ट्री है सेक्सुअलिटी को उसको बदलने का, इवॉल्व करने का, इज़ दैट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट ओपनली। हमको कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी बायोलॉजिकली नॉर्मल प्रोसेस दैट शुड बी नॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी, नॉट सीन एज अ taboo. This is what he was talking about in history of sexuality. Now let's talk about a concept that he gave was discourse. Now what is discourse? Discourse, Michael Foucault ने बोला, is any institution. आपको पता है हमारी सोसाइटी भी एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। और क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं? सोसाइटी तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल स्कूल्स। स्कूल्स क्या करते हैं? पढ़ाई कराने के अलावा स्कूल्स क्या करते हैं? स्कूल्स हमको बताते हैं हमको कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं बिहेव करना है, और व्हाट टू डू, व्हाट टू वेयर, एंड हाउ द सोसाइटी वुड लुक एट यू इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग और एनीथिंग। सो स्कूल्स बेसिकली जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग कैपेबिलिटी, हमारी थिंकिंग पावर है, उसको लिमिट करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, डिस्कोर्स कोई भी होगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, दैट इज एक्चुअली, इन हिज वर्ड्स, आई एम राइटिंग अ डेफिनेशन दैट ही गेव, डिस्कोर्स इज अ कंसेप्चुअल थॉट दैट मेक्स यू थिंक one way and not the other. This is what Michael Foucault said. उसने बोला डिस्कोर्स जो है वो एक टाइप का कंसेप्चुअल थॉट होता है, एक टाइप का कंसेप्ट है जो हमें फोर्स करता है, कल्चरली फोर्स करता है एक तरह से सोचने का, दूसरी तरह से नहीं। अब हमने हमेशा देखा होगा कि हम सोसाइटी हमें सिखाती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, पर आपको पता है हर चीज़ ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, एक ना बीच में मिडिल होता है, जो ना गलत होता ना सही होता,
जो किसी की परसेप्शन में गलत होगा, किसी के परसेप्शन में सही होगा। तो वो यही कहना चाहते हैं डिस्कोर्स के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू, कि इंस्टीट्यूशन हमें फोर्स कर रहा है कि हम चीज़ों को एक पर्टिकुलर परसेप्शन से देखें और अपना परसेप्शन ना बनाए। वी आर नॉट, these institutions like schools, society, family, or your peers, your friends, or your colleges, they are forcing you to think one way, और हम दूसरी तरह से, किसी नई तरह से कुछ देख ही ना पाए या कोई परसेप्शन ले ही ना पाए। अब आप जब कोई नई परसेप्शन नहीं लाएंगे तो कुछ आप नया इन्वेंट कैसे करेंगे, डिस्कवर कैसे करेंगे? तो एक्चुअली जो डिस्कोर्स होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, वो हमारी पावर को लिमिट कर रहा है। अब उन्होंने बोला डिस्कोर्स के अंदर ही कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पावर एंड नॉलेज। उन्होंने बोला ये जो होते हैं पावर एंड नॉलेज, ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। उन्होंने बोला power and knowledge, they are directly proportional to each other. जितना पावर बढ़ेगा उतनी नॉलेज बढ़ेगी, जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतना पावर बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं एक दूसरे को। उन्होंने बोला पावर जो है वो नॉलेज का फंक्शन है, सिमिलरली नॉलेज जो है वो पावर की एक्सरसाइज है। तो उन्होंने बोला पावर और नॉलेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक डिस्कोर्स में, एक इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि जिसके पास पावर होगी उसके पास एक प्रिविलेज होगा नॉलेज बांटने का। अब जैसे हमारा कोई भी, अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च, और लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, टेम्पल्स में एक पुजारी होता है, पुजारी होगा या पंडित होगा, एंड यूजुअली वो पंडित जो हमसे बोल देता है हम उसको सच मान लेते हैं। तो ये उसकी पावर है, उसके पास पावर है आपको अपनी नॉलेज को बिलीव कराने का। ये पावर सोसाइटी के थ्रू या इंस्टीट्यूशन के थ्रू दी जाती है, लेकिन जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर्स, आपके कॉलेज प्रोफेसर्स, या आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स, या फिर जो इंडिया में पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उन सब के पास नॉलेज है, इसीलिए उनके पास पावर है। तो ये दोनों हैंड इन हैंड आते हैं, जिसके पास पावर होगी उसके पास नॉलेज होगी, और जिसके पास नॉलेज होगी उसके पास पावर होगी। सो दिस इज ऑल माइकल फूको सेड. This is all you have to remember about Michael Foucault. The other post-structuralists that we are going to talk about are they are Jacques Derrida, Paul de Man, and Miller. So what I need you to do is I need you to study this first hand, and then go on my Telegram channel, which I'm going to link below, and attempt the quiz on the post-structuralism. I'm going to post the quiz of this part, first part, and then tomorrow we are going to start studying the part 2 of post-structuralism, which are the other writers, and tomorrow the post-structuralism would be finished, and then there would be a quiz of the whole post-structuralist topic, and that would be it. So thank you for watching. Please like, subscribe to my channel, and more videos on specific RPSC topics would be coming forth soon as the next topic is done.